Hello students, today we are going to start with our new chapter, that is units and measurement. In this chapter we will learn about different physical quantities. So you may ask that what are the physical quantities? As you might be aware that there are so many natural phenomena and so many man-made phenomena. In this, suppose if I take that a fruit is falling from the branch of a tree to the ground. In this natural phenomenon, to describe this natural phenomenon, we may require the mass of the fruit, the distance it travelled before striking the ground, and the time required to reach the ground and velocity with which it struck the ground. So all this, that is mass, distance travelled, then time, then velocity, all these are physical quantities. In other words, physical quantities are those quantities which are required to describe the rule of physics. Okay, so there are so many rules of physics like Newton's law, and there are some other rules also. So in these rules we will require a physical quantities, or in other words, physical quantities are those quantities which can be measured, जिसे हम मेजर कर सकते हैं ना बेटा, उसे हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कह सकते हैं. जैसे मास, देन लेंथ, देन we can say time. All these are physical quantities, but those quantities that cannot be measured, they are not physical quantities, like idea, and this you cannot measure this idea, or there is no any process or any procedure which can measure our idea. So idea is not a physical quantities. Now physical quantities can be classified in a different ways. Now first of all, physical quantities can be classified like on the basis of its directional property. So physical quantity, if I classification is done on the basis of its directional properties, then these physical quantities can be classified into vector physical quantities and scalar physical quantities. So vector quantities or vector physical quantities are those quantities which require magnitude as well as direction for their complete description, and scalar quantities are those quantities which only require magnitude and unit, of course, that is, it requires magnitude only and unit for its complete description. Now vector physical quantities are those physical quantities which not only require magnitude, unit, and also they require the direction for their complete description. For example, I can give you a simple example that displacement is a vector physical quantity. Then we can say that force, then momentum, these are vector physical quantities. And scalar physical quantities like mass, then length, then time, these are scalar physical quantities. But in your book, this classification is not given in chapter number 2. Now in chapter number 2, the physical quantities are classified on the basis of their dependency. The physical quantities are classified on the basis of their dependency, like independent physical quantities and dependent physical quantities. Now these independent physical quantities, they are known as fundamental or base physical quantities.
other thing, that is the other classification is done like this: fundamental, and the other one is derived physical quantities. Derived physical quantities. Now, these fundamental or base physical quantities do not require the help of other physical quantities for their complete description, like mass, then we can say length, then we can say time, then we can say luminous intensity, then other is electric current, then other thermodynamic temperature, and amount of substance. So amount of substance. These 7, 2 to 4 to 6 and 7. These 7 physical quantities are fundamental physical quantities, and other physical quantities apart from all these physical quantities like velocity or speed, then force, then we can say momentum, then electric potential, work, energy, and rest of other physical quantities are known as derived physical quantities. So what we learned here, that physical quantities are classified on the basis of their dependency. Independent physical quantities are known as fundamental physical quantities, that they do not require any other help of any other physical quantity for their complete description, like mass, length, time, luminous intensity, current, thermodynamic, temperature, then amount of substance. These are fundamental physical quantities, and derived physical quantities are those quantities which require the help of fundamental quantity for their complete description, like velocity. So if you define velocity or the speed, it will be displacement upon time taken. This will be, that means to define velocity we require the help of displacement. Displacement is nothing but it is one type of length, and the time, that is time is also one type. Time is also a fundamental physical quantity. So this classification is done on the basis of dependency, which is given in your textbook. So make the note of this. Now let us talk about these units. So what do you mean by unit? Unit is nothing but it is a chosen reference standard. It is a chosen reference standard, in multiple of which a physical quantity can be measured. What do you mean by this? A chosen reference standard, in multiple of which a physical quantity can be measured. Like if I take simple example of physical quantity mass, and the unit of this mass is kilogram. So what do you mean by kilogram? Kilogram is nothing but it is a chosen reference standard, in multiple of which a physical quantity can be measured, like 2 kilogram, half kilogram, etc. So unit of mass is kilogram, unit of temperature is Kelvin. We will see this, and unit of, we can say that time is second. So unit is nothing but it is a chosen reference standard, in multiple of which a physical quantity can be measured. Now let us talk about the different fundamental or base quantities. So we can say fundamental or base physical quantities. Now in this we will also talk about the dimension. Now what do you mean by dimension? The dimension is nothing but
Now you might be thinking that what are the dimensions? Dimensions are nothing but they are powers. They are powers to which a base or fundamental quantity is raised to. It is a power, है ना. जैसे हम लोग देखेंगे वेलोसिटी. फॉर एग्जांपल हम लोग अभी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की बात अगर इफ हम लोग नहीं करेंगे, इफ वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, लेट अस से वेलोसिटी, है ना. So this is nothing but velocity can be defined as displacement upon time taken. So it is nothing but it is a displacement upon time taken. So velocity can be written here as displacement is, we will learn this dimensional formula for the displacement, that is L raised to 1, and the time will be equal to T raised to 1. So the dimensional formula for the velocity will be equal to L raised to 1 T raised to minus 1. ये अभी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन ये जो 1 है ना बेटा, ये पावर 1, दिस पावर 1 and this power minus 1 are known as dimensions of velocity. These are known as dimensions of the velocity. Okay, so in this topic, that is fundamental physical quantities and their dimensions So dimensions are the powers to which a base or physical quantities are raised to, है. तो ये वाले हमारे पास dimensions हो गए. So let us talk about the base or fundamental physical quantities. So first is a mass. It physical quantity, here we will write a physical quantity. Here we will write its unit. Here we will write its symbol, and here dimensional formula. Okay, so dimensional formula. So the first physical quantity or the first fundamental physical quantity is nothing but it is a mass. Its unit is kilogram and its symbol is, unit is kilogram and symbol is also kilogram, and the dimensional formula can be given by this way: m raised to 1, l raised to 0 and t raised to 0. Or simply, if you don't want to write this l raised to 0 and t raised to 0, you can also write the dimensional formula for the mass is, we can say here m raised to 1. Then the second one is length. Its unit is meter and the symbol is m, and the dimensional formula is l raised to 1. This is the simple dimensional formula. Or in other word, you can also write m0, l raised to 1, t raised to 0. But if you don't want to write this m raised to 0 and t raised to 0, the simple dimensional formula for the second physical quantity, which is nothing but the L, is L raised to 1. And the third one is, it is time. Time is measured in second and its symbol is S, and it can be written or it will have the dimensional formula T raised to 1. Then the fourth one is, it is thermodynamic temperature. It is thermodynamic or simple temperature, thermodynamic temperature. अभी के लिए आप इसको simple temperature ही मानो. Now the unit is Kelvin and symbol for the unit is K, and it will have its dimensional formula theta raised to 1, है ना. theta raised to हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा theta, है ना. And the fifth one is, we can say electric current. Electric current. The unit is ampere. It is denoted by A, and the dimensional formula is A raised to 1. And the sixth one is luminous intensity. Luminous, इसके बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा. Luminous intensity. So luminous intensity will have its unit as candela, and the symbol is CD, and it will have its dimensional formula, like it will have its dimensional formula
CD raised to 1 and the seventh physical quantity पोज करके पहले इतना ये बनाइए, पोज कर लीजिए, and the seventh one is amount of substance. Its unit is mole, the symbol is mole and the dimensional formula is mole raised to 1. That is, here we can say the dimensional formula will be having, that is mole raised to 1. So these are 7 fundamental physical quantities and there are 2 more supplementary physical quantities are also there. And these quantities are, number 1, it is a plane angle and second one is it is a solid angle. Now plane angle can be made by 2 different rays emerging from the same point of emergence is same, है ना बेटा। तो ये वाला प्लेन एंगल एक ही पॉइंट से अगर 2 रे निकलते हैं तो वो प्लेन एंगल बनता है एंड द यूनिट ऑफ दिस प्लेन एंगल इज रेडियन, है ना, और इसका सिंबल है हमारे पास RAD और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। ये प्लेन एंगल है ना बेटा, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा ये अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। और सॉलिड एंगल जो है, सॉलिड एंगल इज लाइक दिस, है ना, ये वाला हमारे पास सॉलिड एंगल हो गया एंड मेजरमेंट ऑफ द सॉलिड एंगल इज डन इज स्टीरेडियन and it is having the symbol of स्टीरेडियन and the dimensional formula for this solid angle is not there, that is solid angle का भी आपके पास डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। अब ये क्यों नहीं होता, इसकी बेसिक रीजन जो है डायमेंशनल फॉर्मूला इसका क्यों नहीं होता, बिकॉज द डेफिनेशन ऑफ द प्लेन एंगल और द डेफिनेशन ऑफ द रेडियन उसके पीछे जिम्मेदार है एंड द सॉलिड एंगल उसकी भी डेफिनेशन जो है उसकी वजह से उसका डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। दैट वी विल टॉक later on, so make the note of this। देखिए बेटा प्लेन एंगल का डायमेंशनल फॉर्मूला क्यों नहीं होता, तो प्लेन एंगल इज मेजर्ड इन रेडियन, है ना, और रेडियन की हम लोग जो है डेफिनेशन कैसे देते, थीटा दैट इज रेडियन इज इक्वल टू आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, है ना। तो आर्क जो है ये भी एक तरह की लेंथ ही है, जैसे यहाँ पर ये वाला हमारे पास एक एंगल बना तो ये वाला आर्क हो गया और ये वाला उसकी रेडियस होगी, तो आर्क भी एक लेंथ ही है तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा l/1 और यहाँ पर जो है ये r भी एक मतलब रेडियस भी एक तरह की लेंथ ही है तो यहाँ पर उसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा l/0 और इन अदर वर्ड्स इट इज हैविंग द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ m/0, l/0 and t/0। Similarly the solid angle will also have the definition like this, that is solid angle। उसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, तो solid angle is defined, उसका स्टीरेडियन जो है उसका यूनिट कैसे डिफाइन किया जाता है, तो स्टीरेडियन is defined like this, है ना। तो ये वाला सपोज ये वाला एरिया है, सपोज दिस एरिया इज A and this is the radius, so स्टीरेडियन is defined like this, that is area upon r square। so area जो है it is nothing but length into length और r square will also have length into length। so ये वाला हो जाएगा आपके पास l square divided by l square, so ये वाला हो जाएगा आपके पास l/0। so this is the reason why the plane angle and the solid angle उनके पास कोई अपना डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। तो ये वाली तो बात होगी हमारे पास इसकी फिजिकल क्वांटिटीज या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। अब इसके अलावा 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज एंड 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज के अलावा दूसरी जितनी भी क्वांटिटीज है ऑल अदर्स आर डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, है ना। सो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, व्हाट आर द डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज? सो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज which are apart from that fundamental physical quantities or base physical quantities। और इसके जो यूनिट्स होंगे ना
वो यूनिट्स भी हम लोग डिराइव्ड यूनिट्स कहेंगे इसको हम लोग डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज के जो यूनिट्स होंगे उसको हम लोग डिराइव्ड यूनिट्स कहेंगे, है ना। कैसे? जैसे आपके पास मास का जो है आपके पास यूनिट है किलोग्राम, ये हमारे पास फंडामेंटल यूनिट है। लेकिन अगर वेलोसिटी अगर आप देखोगे तो वेलोसिटी का यूनिट होगा मीटर पर सेकंड, है ना। तो वेलोसिटी का जो यूनिट है मीटर पर सेकंड, दिस मीटर पर सेकंड इज नथिंग बट इट इज अ डिराइव्ड यूनिट, इट इज अ डिराइव्ड यूनिट। जैसे हमारे पास टाइम का जो है टाइम का यूनिट है सेकंड, ये हमारे पास फंडामेंटल, ये है हमारे पास फंडामेंटल यूनिट। लेकिन इसके अलावा जैसे आप एक्सेलरेशन लोगे, सो एक्सेलरेशन विल हैव इट्स यूनिट लाइक मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना बेटा, ये वाला क्या है हमारे पास डिराइव्ड यूनिट्स। सो हम लोग जो है और कुछ फिजिकल क्वांटिटीज लेंगे और उसके डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग जो है पढ़ेंगे। जैसे हमारे पास डिस्टेंस है, सो डिस्टेंस d, इसका जो है हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला विल बी इक्वल टू l/1, है ना। आप ऐसा लिखना चाहो तो भी चल जाएगा, या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो m0 l/1 t/0, ये वाला भी हमारे पास उसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, ये वाला हमारे पास उसका डायमेंशनल फॉर्मूला। सो डिस्टेंस विल हैव, आपको ऐसे लिखना है, डिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला ये हो गया m/0 l/0 and t/0। अगर आप ऐसे सिर्फ ऐसे लिखते हो तो ये वाला हो जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला। लेकिन अगर आपने ऐसे लिख दिया स्क्वायर ब्रैकेट में यहाँ पर m/0 l/1 and t/0, तो ये वाला तो हो गया, ये सिर्फ आप अगर आप इतना लिखते हो तो ये वाला हो गया आपके पास डायमेंशनल फॉर्मूला। और अगर आप ऐसे लिखते हो, जैसे डिस्टेंस का सिंबल है हमारे पास d, है ना बेटा, तो ये वाला इसको भी स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हो और इसको भी स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हो, तो ये वाला हो गया हमारे पास डायमेंशनल इक्वेशन, डायमेंशनल इक्वेशन, है ना। क्या फर्क हो गया दोनों में? जैसे आपने सिर्फ एक ही स्क्वायर ब्रैकेट, जैसे आपने लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्वायर ब्रैकेट को यूज नहीं किया, सिर्फ राइट हैंड साइड पे स्क्वायर ब्रैकेट को यूज किया, तो ये वाला हो गया डिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला। और अगर आपने लेफ्ट हैंड साइड पे भी स्क्वायर ब्रैकेट को यूज किया और राइट हैंड साइड पे भी स्क्वायर ब्रैकेट को यूज किया, तो ये वाला हो गया डायमेंशनल इक्वेशन। ऑल द डायमेंशनल फॉर्मूला आर ऑलवेज रिटन इन स्क्वायर ब्रैकेट। जितने भी डायमेंशनल फॉर्मूला है ना बेटा, वो हमेशा आपको स्क्वायर ब्रैकेट में ही लिखने होंगे, है ना। जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल सपोज इफ आई वांट टू फाइंड आउट द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द एरिया, है ना। तो एरिया का अगर डायमेंशनल फॉर्मूला अगर मुझे ढूंढना है तो मैं कैसे ढूंढूंगा? तो सबसे पहला एरिया का जितने भी जो है, अगर आपके पास जितने भी फॉर्मूला है उसमें से चाहे आप किसी भी एक फॉर्मूला का यूज कर लो। जैसे एरिया का फॉर्मूला हमारे पास स्क्वायर के लिए है l स्क्वायर, रेक्टेंगल के लिए है l इंटू b। जैसे एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज डिफाइंड हियर एज 1/2 बेस इनटू हाइट, या तो एरिया ऑफ द सर्कल इज पाई r स्क्वायर, है ना। और फिर उसके बाद जो चाहे जितने भी एरिया, उसमें से किसी भी एक एरिया का जो है आपको उसका, जैसे एरिया इज इक्वल टू l इंटू बी, ये जो है आपने उसका फॉर्मूला लिख दिया। जैसे एरिया का फॉर्मूला हो गया l इंटू बी, है ना बेटा। तो एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। देखिए लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा l/1, और ब्रेथ, ये ब्रेथ जो है ये भी एक तरह का जो है आपके पास, ब्रेथ भी एक तरह की लेंथ ही है, तो इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला होगा l/1। सो द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द एरिया विल बी इक्वल टू l/2, और इन अदर वर्ड्स इट विल बी इक्वल टू m/0 l/2 t/0। चलिए एरिया का आपने फॉर्मूला ये यूज किया, लेंथ इनटू ब्रेथ। कोई बोलेगा कि नहीं मैं एरिया जो है इसको ऐसे लिखूंगा पाई r स्क्वायर। अब आप क्या तभी भी एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला मुझे यही मिलेगा? चलिए देखते हैं। देखिए एरिया ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर। देखिए ये पाई जो है ना, इट इज अ कांस्टेंट, ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। कांस्टेंट जो भी होते हैं ना बेटा, वो जनरली फिजिकल क्वांटिटीज नहीं होते। जैसे पाई 22/7 ये नंबर है,
है ना, ये 22/7 या 3.14, ये जो है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक नंबर है, तो इसका हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है। अब यहाँ पर r है, तो ये r⁻², हम इसको ऐसे लिखेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द r। तो रेडियस क्या है, इट इज वन टाइप ऑफ लेंथ, तो ये वाला हो गया आपके पास l का स्क्वायर। तो ये वाला जो है आपके पास एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया हमारे पास l²। यहाँ पर भी वही मिल रहा है जो हमको यहाँ मिल रहा था, तो ये वाला l² यहाँ पर भी वही मिल रहा है। अगर मैं इसको डायमेंशनल इक्वेशन के तौर पे लिखूं तो एरिया विल हैव द डायमेंशनल इक्वेशन लाइक l/2, है ना। तो ये वाला आप इसको नोट बनाइए, एरिया चाहे आप इसको ऐसे बनाए, इस फॉर्मूला से ढूंढे या इस फॉर्मूला से ढूंढे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो नोट बनाइए इसको। नाउ द नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी वी विल टेक एज वॉल्यूम, है ना। तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है, डायमेंशनल फॉर्मूला की बात नहीं कर रहा मैं, सिर्फ उसका जो हमारे पास फॉर्मूला है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, है ना। तो ये वॉल्यूम का ये जनरल फॉर्मूला हो गया। लेकिन अगर हम लोग इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखे तो डायमेंशनल फॉर्मूला हम इसको ऐसे लिखेंगे कि लेंथ का भी जो है डायमेंशनल फॉर्मूला, ब्रेथ का भी डायमेंशनल फॉर्मूला और हाइट का भी डायमेंशनल फॉर्मूला, है ना। तो ये वाला क्या हो गया, लेंथ इज नथिंग बट इट इज वन टाइप ऑफ लेंथ, ब्रेथ जो है वो भी वन टाइप ऑफ लेंथ ही है, और हाइट जो है वो भी वन टाइप ऑफ लेंथ है। सो द वॉल्यूम विल हैव द डायमेंशनल फॉर्मूला L3, है ना बेटा। वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, L3। उसका जो जनरल फॉर्मूला क्या है, LBH, और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, L3। अच्छा, ये इसका यूनिट क्या होगा, तो यूनिट ऑफ द वॉल्यूम विल बी इक्वल टू मीटर क्यूब, है ना। ये तो आपको पता है, मीटर क्यूब इज यूनिट, इसका ये जो फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास वॉल्यूम है, ये मीटर क्यूब उसका यूनिट है, ये इसका जनरल फॉर्मूला है, और ये उसका L3 जो है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला। अगर आप इसको ऐसे भी लिखना चाहते हो m0 l/3 and t⁻0, तभी भी कोई दिक्कत इसकी नहीं है। जैसे हमारे पास एक दूसरी फिजिकल क्वांटिटी है, वो है हमारे पास डेंसिटी। देखिए यहाँ पर डेंसिटी, सो डेंसिटी का जो है हमारे पास जनरल फॉर्मूला क्या है, इट इज नथिंग बट मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। तो ये वाला हो गया मास अपॉन वॉल्यूम। तो देखिए डेंसिटी जो है इसका, अगर हम लोग मास को मेजर करेंगे तो मास का जो है डायमेंशनल फॉर्मूला इज इक्वल टू m⁻1 and the volume will have its dimensional formula L3. So the density will have its dimensional formula m1 l/-3, है ना। तो डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया बेटा, m1 l/-3। डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, है ना। तो ये वाला अगर आप देखोगे, इसका जो है हमारे पास यूनिट क्या आ जाएगा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। लेकिन उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा बेटा, m⁻1 l/-3। ये डेंसिटी जो है इसका हमारे पास ये यूनिट है। व्हाट डू यू मीन बाय डेंसिटी, डेंसिटी का सिंपल मतलब है कि आप पर यूनिट वॉल्यूम में किसी भी सब्सटेंस में मास कितना है। जैसे मैं आपको सपोज एक एग्जांपल दूं कि सपोज इफ आई टेक द वॉल्यूम ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। इसके अंदर अगर मैं कॉटन देखूं, कॉटन सिंपल जो हम लोग रू बोलते हैं ना, वो कॉटन, उसका जो मास होगा, दैट मास वुड बी इक्वल टू, सपोज वी कैन से 1 ग्राम, है ना। 1 ग्राम जितना कॉटन होगा, तो इसका जो है अगर डेंसिटी देखने जाओ तो हमारे पास 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। लेकिन इफ आई टेक गोल्ड, है ना, उतना ही 1 सेंटीमीटर क्यूब जितना गोल्ड मैं ले लूं, और यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स देखूं मैं, नंबर ऑफ एटम्स गोल्ड के, है ना, और उसका भी अगर मैं मास कंसिडर करूं तो डेट मास वुड बी इक्वल टू, फॉर एग्जांपल, इट इज नॉट द करेक्ट वैल्यू, फॉर एग्जांपल इट माइट बी 1000 ग्राम। 1 सेंटीमीटर क्यूब में गोल्ड कितना आ जाएगा, 1000 ग्राम। तो इसकी डेंसिटी कितनी हो गई, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और इसकी डेंसिटी कितनी हो गई, 1000 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मतलब क्या, डेंसिटी ज्यादा है तो कम स्पेस में कम वॉल्यूम में ज्यादा मास है, कम स्पेस में कम वॉल्यूम में ज्यादा मास है। दिस इज द definition of the density, that is mass upon volume. So its unit is kilogram per meter cube and its dimensional formula is m⁻1 l/-3 and आप t⁻0 आप इसको लिख भी सकते हो, है ना। तो ये वाला हो गया हमारे पास डेंसिटी। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे एक दूसरा जो है हमारे पास, फॉर एग्जांपल स्पीड, या तो उसको हम लोग वेलोसिटी। देखिए स्पीड जो है इट इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वो हम लोग डिस्कस करेंगे इन द कमिंग चैप्टर्स,
है ना। तो स्पीड इज डिफाइंड एज इट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, है ना। अब वेलोसिटी भी इसको ऐसे दिखाएंगे, यहाँ पे डिस्टेंस नहीं लिखा जाएगा। अगर वेलोसिटी अगर आप लिखते हो तो डिस्प्लेसमेंट लिखना पड़ेगा। मैं आपको पढ़ाऊंगा डिस्टेंस ट्रैवल और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क है, दैट वी विल लर्न इन द कमिंग टॉपिक्स, है ना। तो स्पीड का जो है डिस्टेंस ट्रैवल, तो डिस्टेंस ट्रैवल इट इज वन टाइप ऑफ लेंथ, है ना। डिस्टेंस ट्रैवल इज वन टाइप ऑफ लेंथ, सो इट विल हैव डायमेंशनल फॉर्मूला L and the time taken is we can say t. So speed will have dimensional formula L is to 1 t raised to minus 1। देखिए ये 1 जो है ये अगर आप इसको न्यूमरेटर में लेके आओगे तो L is to t raised to minus 1। So speed, है ना, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला ये हो गया। और डायमेंशनल इक्वेशन क्या हो गया, वेलोसिटी का डायमेंशनल इक्वेशन ये हो गया L is to 1 t raised to minus 1। और अगर आप m raised to 0 लिखना चाहते हो तो दैट डिपेंड्स ऑन यू कि अगर आप लिखना चाहते हो या नहीं लिखना चाहते हो, है ना। फिर उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे एक्सेलरेशन, है ना। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर एक्सेलरेशन, सो एक्सेलरेशन इज नथिंग बट इट इज डिफाइंड एज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। सो एक्सेलरेशन, देखिए वेलोसिटी या तो चेंज इन वेलोसिटी, ये दोनों का जो है डायमेंशनल फॉर्मूला सेम ही रहेगा। देखिए वेलोसिटी का हमारे पास जो यूनिट था वो मीटर पर सेकंड, और चेंज इन वेलोसिटी का भी हमारे पास यूनिट रहेगा मीटर पर सेकंड, है ना। वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला था हमारे पास L is to 1 t raised to minus 1, एंड चेंज इन वेलोसिटी का भी डायमेंशनल फॉर्मूला होगा L is to 1 t raised to minus 1 ही होगा। तो अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर एक्सेलरेशन, जैसे एक्सेलरेशन कैन बी पॉजिटिव या आप आगे पढ़ेंगे, और नेगेटिव। जैसे अगर आप जो है बाइक पे जा रहे हो या तो कार में जा रहे हो, तो अगर आप उसको एक्सेलरेटर को ज़्यादा अगर आप देते हो तो आपका बाइक विल गेन एक्सेलरेशन, है ना, उसकी स्पीड में इंक्रीमेंट होगा। और अगर आप ब्रेक लगाते हो तो the acceleration will be negative and that is known as retardation or deceleration। ये लोग हम आगे पढ़ेंगे, है ना। तो इसकी स्पीड में जो है आपको डिक्रीमेंट दिखाई देगा। So acceleration will have the dimensional formula, that is dimensional formula of change in velocity upon dimensional formula for the time taken for that change of velocity। So it will have the dimensional formula L1 t raised to minus 1, जैसा अभी हम लोगों ने देखा था, है ना। देखिए वेलोसिटी का क्या डायमेंशनल फॉर्मूला था, L1 t raised to minus 1, और यहाँ पर देखिए ये वापस जो है t raised to 1 आ गया। सो एक्सेलरेशन विल हैव डायमेंशनल फॉर्मूला L is to 1 t raised to, ये 1 ऊपर चला जाएगा तो ये -1 और ये -1, क्योंकि दिस विल मूव टू द न्यूमरेटर। सो एक्सेलरेशन विल हैव द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ L1 t raised to minus 1। इसका जो है ऐसा यूनिट हम लोग देखेंगे ऐसा सिस्टम के बारे में जो आगे, तो इसका जो यूनिट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। एक्सेलरेशन इज मेजर्ड इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन को कैसे मेजर किया जाता है, एक्सेलरेशन A इज मेजर्ड इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड इट विल हैव इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला L1 t raised to minus 2। एंड द नेक्स्ट वन इज दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, और ये वाला डायमेंशनल फॉर्मूला आप बार बार जो है उसको यूज करोगे, एंड दैट इज फोर्स। सो फोर्स हम लोग पढ़ेंगे आगे। फोर्स इज नथिंग बट इट इज एन एक्सटर्नल एजेंसी which causes the change in velocity or which causes the change in the shape of the given object and which causes the stationary object to be in motion, और motion में जो ऑब्जेक्ट है उसको स्टेशनरी बना देता है। ये वाला फोर्सेस के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। देखिए फोर्स का जो है हमारे पास फॉर्मूला है F is equal to m into a, है ना। ये वाला न्यूटन का सेकंड लॉ है, इसके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल अभी इसका जो फॉर्मूला है जनरल फॉर्मूला that F is equal to m into a। So the dimensional formula या तो डायमेंशनल इक्वेशन अगर आप लिखना चाहो तो डायमेंशनल इक्वेशन विल बी लाइक दिस, दैट इज डायमेंशनल इक्वेशन F is equal to dimensional formula for the mass into dimensional formula of acceleration। देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द मास इज m raised to 1, और अभी हम लोगों ने देखा था एक्सेलरेशन का क्या था डायमेंशनल फॉर्मूला L1 t raised to minus 2। So it will have dimensional formula m1 L1 t raised to minus 2, and if I
write like this. So this will become dimensional equation. So dimensional equation of the force will be equal to m1 l1 t raised to -2. अच्छा, इस पर से आप जो है ना इसी डायमेंशनल फॉर्मूला से आप उसका यूनिट भी लिख सकते हो। जैसे m raised to 1 है तो ये वाला हो गया आपके पास किलोग्राम, l raised to 1 है ये वाला हो गया आपके पास मीटर, और t raised to 2 है तो ये वाला हो गया सेकंड स्क्वायर, है ना। तो ये इसका फोर्स का जो हमारे पास यूनिट होगा वो क्या होगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या होगा बेटा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको हम लोग 1 न्यूटन भी कहते हैं, पढ़ेंगे हम लोग इसके बारे में, है ना। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको हम लोग 1 न्यूटन भी कहते हैं। तो फोर्स विल हैव इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला, ये आप रट्टा लगा कर लीजिए क्योंकि बार बार ये यूज होने वाला है। फोर्स विल हैव m1 l1 t raised to -2, है ना। फोर्स क्या हो जाएगा बेटा, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया m raised to 1 और एक्सेलरेशन का हो गया l raised to 1 t raised to -2, तो ये वाला हो गया m raised to 1 l raised to 1 t raised to -2। तो फोर्स का जो यूनिट है वो है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला विल बी लाइक दिस, ये m raised to 1 l raised to 1 t raised to -1। फिर उसके बाद जो है हमारे पास एक और फिजिकल क्वांटिटी है, एंड दैट फिजिकल क्वांटिटी इज वर्क। जैसे अब आप बोलोगे कि ये आपको एक के बाद एक कैसे आ रहा है, तो देखिए जैसे जैसे आप पूरा फिजिक्स पढ़ोगे ना तो ये सारी फिजिकल क्वांटिटी जो है एक सीक्वेंस में आपके पास आती ही जाएगी, है ना। तो वर्क W, इसको हम लोग डिफाइन करेंगे F इंटू डी, वी विल डिफाइन लाइक दिस, है ना। एक्चुअली ये स्केलर प्रोडक्ट है, हम लोग उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल अभी इसका जनरल फॉर्मूला ये लिख लीजिए, वर्क इज इक्वल टू, वर्क कैन बी विल हैव इट्स जनरल फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो फोर्स का अभी आपको पढ़ाया, फोर्स का क्या था बेटा, डायमेंशनल फॉर्मूला m1 l1 t raised to -2, और d इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट। जैसे फोर्स जो है आप इस डायरेक्शन में लगा दो और इसी डायरेक्शन में जो है सपोज ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपको वर्क देगा, द वर्क डन बाय दिस फोर्स, वर्क डन बाय दिस फोर्स, है ना। तो ये जो d है इट इज वन टाइप ऑफ लेंथ, मतलब उसने जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो वाला हो गया आपके पास l। सो वर्क विल हैव डायमेंशनल फॉर्मूला लाइक m1 l2 t raised to -2। बहुत अच्छी तरीके से देखिए, यहाँ पर देखिए वर्क इज इक्वल टू F इंटू डी। फोर्स का क्या डायमेंशनल फॉर्मूला, m1 l1 t raised to -2, और यहाँ पर हो गया ये l, तो m1 l2 t raised to -2, वर्क का ये वाला हो गया। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे, देखिए ये वर्क जो है ना बेटा, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला और कोई भी एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला, जैसे काइनेटिक एनर्जी हो गई, पोटेंशियल एनर्जी हो गई, और फिर उसके बाद जो है आपके पास दूसरी भी कोई एनर्जी हो गई, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला वर्क का और एनर्जी का सेम ही रहेगा। जैसे देखिए काइनेटिक एनर्जी आपने पढ़ा होगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv², है ना। इसका डायमेंशन, इसका जनरल फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, वी कैन से 1/2 mv²। तो देखिए ये काइनेटिक एनर्जी, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं कि 1/2, ये तो नंबर है, इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा, मास का होगा m⁻⁴, और यहाँ पर v जो है, v मतलब वेलोसिटी, ये वेलोसिटी का जो है आपके पास स्क्वायर है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर m⁻⁴ और यहाँ पर v का जो है हमारे पास l⁻⁴ t⁻⁴ अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना बेटा, देखिए वेलोसिटी का क्या पढ़ा था हम लोगों ने, l t⁻⁻⁴। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर, सो ये वाला हो जाएगा हमारे पास m⁻⁴, और यहाँ पर देखिए ये इसका पावर 2 है, तो ये वाला हो जाएगा l⁻² t⁻⁻²। सो द काइनेटिक एनर्जी विल हैव द डायमेंशनल फॉर्मूला m⁻⁴ l⁻² t⁻⁻²। तो m⁻⁴ l⁻² t⁻⁻², तो ये वाला क्या फॉर्मूला हो गया, ये वाला फॉर्मूला हो गया काइनेटिक एनर्जी। देखिए वही फॉर्मूला है जो फॉर्मूला आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जैसे वर्क और काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। तो वर्क और जितने भी एनर्जी है वो सभी का डायमेंशनल फॉर्मूला आपके पास एक ही होगा। जैसे कोई बता दे कि फॉर एग्जांपल देखिए आपने काइनेटिक एनर्जी तो ले ली, तो कोई ऐसा बोलेगा कि आप जो है पोटेंशियल एनर्जी के बारे में भी ये प्रूव करके बताइए। तो देखिए मैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में भी m1 l⁻² t⁻⁻² में प्रूव करके बता दूंगा, जिससे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी
इसका एक जनरल फॉर्मूला हमारे पास है mgh, है ना। m मास, g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी एक टाइप का एक्सेलरेशन ही है, और h हाइट, इट इज वन टाइप ऑफ लेंथ। तो ये पोटेंशियल एनर्जी, इसको हम लोग जनरली u ऐसे लिखते हैं, और यहाँ पर मास का जो है डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया हमारे पास m⁻⁴, g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, मतलब एक टाइप का एक्सेलरेशन ही हुआ, तो इसका फॉर्मूला हो गया L1 T⁻²। हम लोगों ने देखा था ना एक्सेलरेशन का, रिवाइंड करके देखिए, एक्सेलरेशन का यही फॉर्मूला है L1 T⁻²। और यहाँ पर h देखिए, h इज नथिंग बट इट इज हाइट, और हाइट इज नथिंग बट इट इज वन टाइप ऑफ लेंथ। सो वी विल हैव m1 L1 L1, तो ये वाला क्या हो गया L1 L1, ये वाला हो गया L2 और T⁻²। देखिए यही डायमेंशनल फॉर्मूला आपको यहाँ पर भी मिलेगा, है ना। तो वर्क और जितनी टाइप की एनर्जी है वो सभी का जो है आपको डायमेंशनल फॉर्मूला सेम ही मिलेगा। जैसे वर्क जो है ना, इसको मेजर किया जाता है, वर्क इज नथिंग बट इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी, और वर्क को हम लोग मेजर करते हैं जूल में, है ना। जैसे आपने देखा, फॉर एग्जाम्पल देखिए कि अगर आप ऐसा बोलोगे कि मैंने बहुत वर्क किया, है ना, तो अगर मुझे आप बोलोगे कि मुझे बहुत वर्क किया, तो मैं क्या क्वेश्चन करूंगा, कितने जूल आपने वर्क किया, कितने जूल आपने वर्क किया, है ना। तो ये वर्क को मेजर किया जाता है जूल में, है ना। और फॉर एग्जांपल यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी को भी मेजर किया जाता है जूल में, काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो मेजर्ड इन जूल, है ना। और पोटेंशियल एनर्जी इज आल्सो मेजर्ड इन जूल। अच्छा, इसका ऐसा यूनिट आप कैसे बना सकते हो, तो इस पे से बना सकते हो, जैसे इसको मेजर किया जाता है जूल में, और यहाँ पर भी जूल में, तो 1 जूल कैन बी रिटन हियर एज 1 जूल। देखिए अब यहाँ से इसका ऐसा यूनिट आप बना सकते हो, ऐसा सिस्टम के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा। जैसे ये वाला हो गया किलोग्राम, ये वाला हो गया मीटर स्क्वायर, ये वाला हो गया किलोग्राम, ये वाला हो गया मीटर स्क्वायर, और ये वाला हो गया आपके पास सेकंड स्क्वायर, है ना। तो 1 जूल इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, है ना। तो ये वाला हमारे पास हो गया वर्क, और फिर उसके बाद एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। देन अनदर फिजिकल क्वांटिटी व्हिच कम्स टू यू इज नथिंग बट इट इज पावर, है ना। पावर इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट टाइम, है ना। इट इज नथिंग बट वर्क डन पर यूनिट टाइम, है ना। तो पावर को हम लोग P लिखते हैं। तो द डायमेंशनल फॉर्मूला और द डायमेंशनल इक्वेशन, अगर हम लोग यहाँ पर भी लिखे ब्रैकेट को, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द वर्क अभी कितना लिखा था बेटा, m1 L2 T⁻², है ना। और यहाँ पर वापस जो है हम लोग इसको लिखेंगे T⁻1। सो पावर विल हैव द डायमेंशनल फॉर्मूला m1 L2 T⁻²। अगर आप इसको ऊपर ले जाओगे तो दिस विल बी इक्वल टू, वी कैन से T⁻⁻3, है ना। तो ये वाला जो हो जाएगा -2, और ये -1 ये ऊपर चला जाएगा, ये वाला हो जाएगा पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला। सो डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द पावर इज m1 L2 और T⁻²। अगर दोनों साइड पे अगर आपको ये स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहे हैं, तो ये वाला आपके पास डायमेंशनल इक्वेशन हो जाएगा। तो डायमेंशनल इक्वेशन फॉर द पावर विल बी लाइक दिस, है ना। सो P विल हैव m1 L1 L2 T⁻²। अच्छा, जैसे पावर जो है ना, वो हम लोग पढ़ेंगे, इसको वॉट में मेजर किया जाता है, इसमें वॉट में मेजर किया जाता है ना। फॉर एग्जांपल देखिए 1 वॉट कैन बी रिटन हियर एज m⁻1, मतलब 1 किलोग्राम, यहाँ पर m² अपॉन सेकंड⁻3, है ना। तो 1 वॉट कैन बी रिटन हियर एज 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड क्यूब। ये वॉट जो है ये वाला इसका ऐसा यूनिट है। इसके और भी यूनिट है, जैसे हमारे पास कन्वेंशनल यूनिट हॉर्स पावर भी है, उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये वाला हो गया हमारे पास पावर। फिर उसके बाद जो है दूसरी फिजिकल क्वांटिटी जो आती है उसको हम लोग कहेंगे मोमेंटम। मोमेंटम P, इट इज नथिंग बट इट इज m into v, है ना। तो ये वाला उसका मोमेंटम का जो फॉर्मूला हो गया P इज इक्वल टू, वी कैन से m into v। सो मोमेंटम P, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया m, और यहाँ पर हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द v। सो डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द m इज m⁻1, और यहाँ पर L⁻1 T⁻⁻1। सो ये वाला हो गया m1
L1 t रेज़ टू माइनस 1। ठीक है, तो मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया ये। और अगर आप इसको ऐसे लिखते हो तो ये वाला हो गया हमारे पास डायमेंशनल इक्वेशन। चलिए बताइए इसका जो है यूनिट क्या होगा, तो ये वाला होगा यूनिट किलोग्राम, ये वाला होगा आपके पास मीटर पर सेकंड। सो मोमेंटम ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। मोमेंटम इज नथिंग बट इट इज अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मास विद वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना। कोई ऑब्जेक्ट जो मोशन कर रहा है उसकी वेलोसिटी को अगर आप मास से मल्टीप्लाई कर देते हो तो उसका मोमेंटम आपको मिल जाएगा। सो दिस विल हैव दिस डायमेंशनल फॉर्मूला m1 l1 t रेज़ टू माइनस 1। क्या फॉर्मूला हो गया मोमेंटम का, m इंटू v, और उसका जो है डायमेंशनल फॉर्मूला हमारे पास m1 l1 t रेज़ टू माइनस 1 हो गया, है ना। फिर उसके बाद हम लोग एक और फिजिकल क्वांटिटी को देखेंगे, उसको हम लोग कहेंगे प्रेशर। प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया, है ना। प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया। सो फोर्स का, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, फोर्स का जो है हमारे पास प्रेशर जो है इसको हम लोग P के तौर पे लिखते हैं। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या था बेटा, m1 l1 t रेज़ टू माइनस 2। एंड व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर द एरिया, इनिशियली हम लोगों ने देखा था ये वाला था हमारे पास L स्क्वायर। सो द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द प्रेशर इज इक्वल टू m1 l रेज़ टू माइनस 1 t रेज़ टू माइनस 2। ये वाला हमारे पास प्रेशर आ गया, है ना। फिर उसके बाद जो है एक और भी जो है हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला, तो इसको आप नोट बनाइए इसका। चलो बेटा, नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी इज टाइम पीरियड। इट इज टाइम पीरियड, है ना। तो टाइम पीरियड इज नथिंग बट, और इट इज ऑल्सो नोन एज पीरियोडिक टाइम, है ना। तो ये वाला टाइम पीरियड और पीरियोडिक टाइम, इट इज नथिंग बट इट इज वन टाइप ऑफ टाइम। जैसे टाइम पीरियड, फॉर एग्जांपल सपोज वन ऑब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग अ सर्कुलर मोशन, है ना। ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है, तो ये ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से अपनी मोशन को स्टार्ट करके वापस उसी पॉइंट पे आता है, तो जो टाइम उसको लगेगा that time is defined as periodic time. So time required to complete one complete circle or one complete revolution is known as time period, and time period will have its dimensional formula t raised to 1, है ना। तो टाइम पीरियड जो है इसको हम लोग कहते हैं t raised to 1, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, और इसको हम लोग मेजर करते हैं सेकंड में। अच्छा, अगर इसका रेसिप्रोकल हम लोग लेंगे, है ना, रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। The reciprocal of the time period is known as frequency. So frequency is f and it is denoted by 1 upon time. So the dimensional formula for the frequency will be equal to, it is dimensional formula of 1 upon t. तो ये वाला तो डायमेंशनल इक्वेशन हो गया, तो ये वाला हो गया f, ये वाला होगा डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर 1 एंड डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर t। अब देखिए 1 जो है इट इज अ नंबर, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला तो नहीं होगा, सो वी कैन राइट हियर एज m0 l0 t0, है ना। लेकिन इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा t रेज़ टू 1। सो द फ्रीक्वेंसी विल हैव द डायमेंशनल फॉर्मूला m0 l0 t रेज़ टू माइनस 1, है ना। तो ये वाला हो गया फ्रीक्वेंसी। अच्छा, फ्रीक्वेंसी कैसे मेजर की जाती है मालूम है आपको, हर्ट्ज में। फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इन हर्ट्ज। सो इट इज नथिंग बट इट इज दैट फ्रीक्वेंसी इज it is nothing but it is defined like this, that is it is number of periods or number of repetitions in unit time interval, है ना। तो it is number of repetitions of motion or whatever it may be। देखिए frequency is nothing but it is number of repetitions in 1 second or unit time period। फिर उसके बाद जो है हम लोग दूसरी भी फिजिकल क्वांटिटीज को देखेंगे, जैसे हमारे पास आ गई फॉर एग्जाम्पल एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हम लोग कभी कभी एंगुलर वेलोसिटी भी कहेंगे। अब कब कहना है इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी या कब कहना है एंगुलर वेलोसिटी, ये आपको रोटेशनल मोशन वाले चैप्टर में आपको अच्छी तरीके से पढ़ाया जाएगा। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड एंगुलर वेलोसिटी, चलिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी की पहले ही हम लोग बात करते हैं, क्योंकि फिर बाद में जो है इट इज नथिंग बट एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है इट इज 2 पाई f। एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज डिनोटेड बाय ओमेगा, है ना। तो ये वाला है हमारे पास ओमेगा, ये w नहीं है बेटा, ये है ओमेगा, है ना। सो ओमेगा इज इक्वल टू वी कैन से 2 पाई f।
So dimensional formula for the angular frequency is equal to dimensional formula for 2 pi and dimensional formula for the frequency. लेकिन ये 2 pi जो है ये नंबर है, इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा. सो डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द ओमेगा विल बी इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द फ्रीक्वेंसी ओनली. द फ्रीक्वेंसी का क्या डायमेंशनल फॉर्मूला था हमारे पास, ये वाला था हमारे पास, ओमेगा विल हैव t⁻⁻1 है ना. तो ये वाला एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बारे में मैंने अलग से बात की. अब एंगुलर वेलोसिटी के बारे में भी मैं अलग से बात करता हूँ. देखिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है इट इज डिनोटेड बाय 2 pi f और इसका फॉर्मूला ये हो गया हमारे पास 2 pi f और ये वाला हो गया हमारे पास इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया t⁻⁻1. अच्छा एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है इसको हम लोग, इसका यूनिट क्या है मालूम बेटा, इसका यूनिट है रेडियन पर सेकंड. रेडियन पर सेकंड सेम यूनिट एंगुलर वेलोसिटी का भी है, सेम यूनिट रेडियन पर सेकंड एंगुलर वेलोसिटी का भी है. अच्छा एंगुलर वेलोसिटी हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे. सो एंगुलर वेलोसिटी, अब आप बोलोगे ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है और एंगुलर वेलोसिटी क्या है. बेटा अभी जो है ना, अभी अगर आपको जो मैं पूरा ये एक्सप्लेन करने भी जाऊंगा ना तो आपको जो ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप सिर्फ अभी इसको देख लीजिए है ना. और जब ये हमारा चैप्टर चलेगा, देखिए ये आपको जो पूछा जाएगा, ये कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला ये लास्ट आपके पास एग्जाम में होगा, तब तक ये सभी टर्म से आप लोग जो है अच्छी तरीके से वाकिफ हो चुके होंगे. सो एंगुलर वेलोसिटी इज नथिंग बट इट इज डिफाइंड हियर एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. सो अपॉन टाइम है ना. तो एंगुलर वेलोसिटी उसको भी हम लोग ओमेगा ही कहते हैं, उसको भी हम लोग कहेंगे ओमेगा है ना. तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट इट इज वन टाइप ऑफ एंगल है ना. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये है एंगल और ये है हमारे पास टाइम. सो दिस एंगुलर वेलोसिटी इज डिफाइंड एज it is angular displacement upon time. So angular displacement is measured in angle and the time is measured in seconds. So angle, देखिए एंगल जो है it is a supplementary physical quantity. तो ये वाला इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था, ये वाला नहीं था. देखिए इसका डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं था, m0 l0 t0 और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा t⁻1. So the angular that is angular velocity is having the dimensional formula, that is omega is equal to m0 l0 t⁻⁻1. So angular velocity will have the dimensional formula of, we can say, m0 l0 t⁻⁻1. and the next physical, देखिए इसको भी हम लोग ऐसे ही मेजर करेंगे. देखिए एंगुलर वेलोसिटी, देखिए एंगल को मेजर किया जाएगा हमारे पास रेडियन में और ये t जो है ये सेकंड में है ना. तो इसको जो है हमको एंगुलर वेलोसिटी विल हैव द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ m0 l0 t⁻⁻1 but will have its unit as radian per second. And the next one, which is a very important one, is nothing but it is angular acceleration. Angular acceleration. So angular acceleration alpha, it is nothing but it is defined as angular displacement upon time square. That we will learn. इसको हम लोग ऐसे भी डिफाइन करेंगे. angular acceleration is change in angular velocity upon time taken. So angular acceleration इसको हम लोग पढ़ेंगे. angular acceleration, देखिए एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता था हमारे पास m0 l0 t⁻⁻1 और t का जो है वापस t, मतलब टाइम का जो वापस t डायमेंशनल फॉर्मूला. सो एंगुलर एक्सेलरेशन विल हैव डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ m0 l0 t⁻2 है ना. तो ये वाला हो गया हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन. फिर उसके बाद जो है हमारे पास है मोमेंट ऑफ इनर्शिया. द नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी which you are going to learn is moment of inertia. Moment of inertia I, and it will have the dimensional formula of mr square. ये हम लोग पढ़ेंगे है ना. moment of inertia है ना, इसका जो है हमारे पास हो जाएगा moment of inertia is nothing but it is mr square. पता है आपको inertia, measure of inertia क्या होता है बेटा? What is measure of inertia? It is mass
है ना। मैं आपको पढ़ाऊंगा कि मास और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ये दोनों में क्या फर्क है। जैसे फिजिकल क्वांटिटी में दोनों है, मास भी है और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी है। मास मेजर किया जाता है हमारे पास किलोग्राम में और जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है मोल में, है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये इनर्शिया के बारे में हम लोग काफी डिस्कस करेंगे। इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू mr स्क्वायर। सो द डायमेंशनल फार्मूला, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। डायमेंशनल फार्मूला फॉर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू m, और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा r स्क्वायर। अब ये वाला हो जाएगा m⁻⁴ और यहाँ पर r इज नथिंग बट रेडियस, है ना। तो ये रेडियस का है, वन टाइप ऑफ लेंथ, तो ये वाला हो गया l का स्क्वायर। सो इट विल हैव द डायमेंशनल फार्मूला m1 l/2 t⁻0, है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल हैव द डायमेंशनल फार्मूला इज इक्वल टू m1 l/2 t⁻0। चलिए इसका यूनिट क्या होगा, यहीं से आप इसका यूनिट भी बता सकते हो। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिफाइंड एज, और इसका यूनिट होगा m⁻⁴ मतलब किलोग्राम और l/2 मतलब मीटर स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी आपके कोर्स में है, तो आप पढ़ोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इट इज इक्वल टू वी कैन से m1 l2 और t⁻0 और इसका यूनिट होगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर। उसके बाद जो है अगर आप देखोगे, उसके बाद जो है आपके पास होगा टॉर्क, है ना। तो ये वाला होगा टॉर्क। अब ये टॉर्क इज डिफाइंड हियर एज F × d। अब आप बोलोगे कि पहले भी आपने बताया था वो वर्क था, है ना। तो वो वर्क के अंदर भी आपने जो F × d लिखा था, अब आप टॉर्क के अंदर भी F × d लिख रहे हैं। तो ये दोनों अलग अलग चीजें, देखिए बेटा, वर्क अलग है और टॉर्क अलग है। टॉर्क इज नथिंग बट इट इज द फोर्स व्हिच कॉजेस द रोटेशनल मोशन, है ना। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर सपोज अ रोड इज देयर, है ना, और यहाँ पर दिस रोड इज पिवोटेड एट दिस पॉइंट। नाउ इफ आई अप्लाई द फोर्स इन दिस डायरेक्शन, the road is pivoted at this point, and if I apply the force in this direction, it will not have any effect on this road. But if I apply the force in this direction, then this road will start rotating like this. जैसे ये रोड है, यहाँ पर ये पिवोटेड है, तो इसको अगर हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये ऐसे रोटेशनल मोशन करना स्टार्ट कर देगा। तो वो फोर्स जो रोटेशनल मोशन कोज करता है उसको हम लोग कहते हैं टॉर्क। वी विल लर्न दिस, है ना। तो ये टॉर्क इज इक्वल टू, इट इज डिनोटेड बाय टाउ। टाउ इसको कैसे लिखेंगे, ये वाली आपके पास एक सिंपल लाइन और यहाँ से C बना देना है आपको, है ना। तो ये वाला हो जाएगा टॉर्क, टाउ, इट इज नॉन एज टाउ, है ना। ये वाला हो जाएगा आपके पास टाउ। तो टाउ इज फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला, हमको याद ही m1 l1 t⁻2 और ये डिस्प्लेसमेंट इट इज इक्वल टू वी कैन से l1। So it is m1 l2 t⁻2, ठीक है। अब देखिए ये टॉर्क का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है ना, ये वही डायमेंशनल फॉर्मूला है जो वर्क का था, जो एनर्जीज का था, वही डायमेंशनल फॉर्मूला आपको जो है यहाँ पर टॉर्क का भी मिला है। एंड टॉर्क इज ऑल्सो मेजर्ड हियर इज किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, है ना। इसका यूनिट आपके पास ये हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है आप एक और फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ोगे, और वो है हमारे पास इम्पल्स ऑफ फोर्स। इम्पल्स ऑफ फोर्स, है ना। तो इम्पल्स ऑफ फोर्स इज डिफाइंड हियर एज फोर्स इनटू टाइम। फोर्स इनटू टाइम। सो इम्पल्स ऑफ फोर्स विल हैव द डायमेंशनल फॉर्मूला m1 l1 t⁻2 और यहाँ पर आपके पास टाइम जो है t⁻1। So impulse of force will have the dimensional formula m1 l1 t⁻1। impulse of force का dimensional formula वही होगा जो आपके पास momentum का होता है ना। तो impulse of force का वही dimensional formula है जो momentum का होता है, और इसका यूनिट क्या होगा, किलोग्राम। देखिए यहाँ पर आप लिखोगे किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये वाला हो जाएगा आपके पास किलोग्राम मीटर पर सेकंड, है ना। फिर उसके बाद जो है आप एक और फिजिकल क्वांटिटी भी पढ़ोगे, वो है हमारे पास सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन इट इज डिफाइंड एज F/L। अब ये सरफेस टेंशन आपको कहां पर दिखाई देगा, तो सपोज आपके पास कोई लिक्विड सरफेस है ना, तो ये लिक्विड सरफेस पे यू विल एक्सपीरियंस, यहाँ पर ये सरफेस पे एक खिंचाव होगा, एक फोर्स होगा, एक टेंशन होगा, है ना।
तो इसी इसको मेजर किया जाता है सरफेस टेंशन में। जैसे आप एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करो, है ना, तो ये इमेजिनरी लाइन अगर यूनिट लेंथ की है तो इसके ये डायरेक्शन में और ये डायरेक्शन में अगर फोर्स देखोगे तो दोनों डायरेक्शन में आपको फोर्स दिखाई देंगे। तो हम लोग किसी भी एक डायरेक्शन का फोर्स देते हैं, जैसे पूरी के पूरी सरफेस एक खींची हुई लगती है और ये खींची हुई किसी फोर्स से खींची हुई लगती है और डेड फोर्स पर यूनिट length is known as surface tension and surface tension is generally denoted by sigma. It is denoted by sigma, है ना। तो ये वाला हो गया हमारे पास m1 L1 T raised to -2 और यहाँ पर हो गया आपके पास L1. So the dimensional formula for the surface tension is equal to m1 L0 T raised to -2. ये वाला आपके पास surface tension का dimensional formula हो गया। फिर उसके बाद जो है अगर आप देखोगे तो डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द स्पेसिफिक हीट, है ना। तो डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द स्पेसिफिक हीट, अच्छा अगर आपको जो है सपोज यहाँ पर इसका कोई फॉर्मूला बनाते आपको नहीं आ रहा है तो हम लोग क्या लिखेंगे, आपको ये फॉर्मूला तो याद है ना, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू mc डेल्टा टी, याद है या नहीं है ना। अगर नहीं याद है तो मैं आपको बता दूं डेल्टा क्यू इज द हीट एनर्जी, ये आपको शायद 9th में पढ़ाया होगा, आई डोंट नो, ये 9th में आता है। देखिए यहाँ पर स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू वी कैन से डेल्टा क्यू इज इक्वल टू mc डेल्टा टी। तो यहाँ पर m जो है मास है, c स्पेसिफिक हीट है और डेल्टा टी टेम्परेचर है। तो यहाँ से ये वाला हो जाएगा डेल्टा क्यू बाई m डेल्टा टी। मैं वैसे ही ऐसे ही फॉर्मूला जनरली अपने मन में बनाता हूँ। तो ये फॉर्मूला हमारे पास हो गया स्पेसिफिक हीट c, है ना, स्पेसिफिक हीट c will have the dimension, will have the formula delta q upon m delta t, है ना। अब आप बोलोगे कि स्पेसिफिक हीट का हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया, तो डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू डेल्टा क्यू, हीट एनर्जी, वापस क्या आ गया बेटा, एनर्जी, क्या फॉर्मूला होगा, m1 L/2 T⁻², होगा ना, m1 L/2 T⁻², डेल्टा क्यू इज हीट एनर्जी। तो एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम ही होगा, m का जो होगा आपके पास मास m⁻1 और डेल्टा t का होगा T⁻1, है ना। तो c विल हैव द डायमेंशनल फॉर्मूला m0 L2 T⁻3, है ना। ये वाला हो गया आपके पास c इज इक्वल टू m0 L2 T⁻3। दिस विल हैव, और दिस इज नथिंग बट दिस इज द फॉर्मूला फॉर द स्पेसिफिक हीट। फिर उसके बाद जो है आपको एक और डायमेंशनल फॉर्मूला मैं आपको पढ़ाऊंगा, डायमेंशनल सॉरी डेल्टा टी इज नथिंग बट टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को तो हम लोग थीटा लेते हैं, सॉरी बेटा, देखिए गलती हो गई ना जल्दी पढ़ाने में। यहाँ पर देखिए स्पेसिफिक हीट m1 L2 T⁻², m1 और ये टेम्परेचर है, टेम्परेचर को हम लोग थीटा देंगे। तो ये वाला डायमेंशनल फॉर्मूला आपके पास बदल के क्या हो जाएगा, m⁻0 L/2 T⁻² एंड θ⁻⁻1, ये वाला क्या हो जाएगा आपके पास, θ⁻⁻1 आपके पास -1, है ना, ये θ⁻⁻1। ओके, कितनी बुक्स के अंदर थीटा को आप देखोगे ना तो के भी कहा जाता है, कितनी बुक्स के अंदर देखिए m0 L2 T⁻²। और अगर आप देखो HC वर्मा में देखोगे ना आप HCV के अंदर, तो उसके अंदर थीटा नहीं लिखा गया है लेकिन यहाँ पर के लिखा गया है। तो थीटा एंड के डायमेंशनल में अगर आप जो है कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, HCV में आपको K⁻1 दिखाई देगा। और जनरली आप कितनी बुक्स के अंदर जो है, जैसे आप हेलिडे रेस्ट्रिक्ट में देखोगे तो ये वाला θ⁻⁻1, मतलब ये थीटा कहा गया, वहाँ पर केल्विन वाला, वहाँ पर के कहा गया, है ना। तो ये वाला हमारे पास स्पेसिफिक हीट का हो गया, है ना। पोज करके इसको लिख लीजिए। चलिए बेटा, अगर एक और जो है हमारे पास थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी तो चलिए थर्मल कंडक्टिविटी ये जो है इसका फॉर्मूला अगर मुझे नहीं आता है तो एक जो है आप पढ़ोगे, एक फॉर्मूला पढ़ोगे जैसे डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी
इज इक्वल टू माइनस के इंटू डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स। ये वाला हीट ट्रांसफर वाला जो टॉपिक है उसके अंदर ये फॉर्मूला आपको पढ़ने को मिलेगा। तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस के इंटू डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स। इसमें ये के जो है ना बेटा, ये के है हमारे पास थर्मल कंडक्टिविटी है ना, ये डेल्टा क्यू ये वाला हमारे पास हीट एनर्जी, डेल्टा टी टाइम, के थर्मल कंडक्टिविटी, ए एरिया, डेल्टा टी टेम्परेचर जिसको हम थीटा या केल्विन, थीटा या हम के में बताते हैं, एंड डेल्टा एक्स इज नथिंग बट इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन द टू लेयर्स। ये हम लोग पढ़ेंगे। तो थर्मल कंडक्टिविटी का हमारे पास फॉर्मूला क्या हो गया, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी अपॉन ए इंटू डेल्टा टी बाय डेल्टा एक्स। सो कैन आई राइट लाइक दिस, दैट इज माइनस विद द माइनस साइन। तो ये थर्मल कंडक्टिविटी इसको हम लोग यहाँ पर के लिखते हैं और ये हम ऐसे लिखेंगे डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी अपॉन ए इंटू डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स। देखिए यहाँ पर जनरली जैसा मेरी अभी गलती हुई थी वैसे ही जो है जनरली बच्चे भी गलती करते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, ये डेल्टा टी जो है ना बेटा, ये टाइम है और ये कैपिटल डेल्टा टी है ना, ये टेम्परेचर है ना। तो ये वाला हमारे पास हो गया के, ये डेल्टा माइनस तो जो है -1 होता है, इसका तो कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता। सो द डायमेंशनल फार्मूला फॉर द हीट एनर्जी इज इक्वल टू m1 L2 T⁻² डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, टाइम है तो ये वाला हो गया हमारे पास T⁻1। अब यहाँ पर एरिया विल हैव द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ यहाँ पर L² डेल्टा टी, ये K⁻1 या θ⁻1 आप जो भी लिखना चाहो, और यहाँ पर आपके पास डेल्टा एक्स जो है यहाँ पर डिनोमिनेटर में है तो ये वाला हो जाएगा L⁻, वी कैन से -1 है ना, डेल्टा टी बाय डेल्टा एक्स, सो के अपॉन L⁻⁻1। सो थर्मल कंडक्टिविटी विल हैव द डायमेंशनल फार्मूला लाइक दिस। देखिए यहाँ पर ये L² और L² कैंसिल हो गया हमारे पास, और ये वाला हो गया m1 T⁻3, ये तो हमारे पास नहीं है। अब ये वाला हो गया हमारे पास K1 और यहाँ पर हो गया हमारे पास L⁻⁻1। So the thermal conductivity will have the dimension formula m1 L1 T⁻³ और K⁻⁻1 है ना। तो ये पोज करके इसको आप नोट बनाइए, पोज करके आप नोट बनाइए। अब देखिए बेटा, इलेक्ट्रिक करंट this is also the physical quantity which you are going to learn। तो इलेक्ट्रिक करंट I है ना, जैसे हमारे पास वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को भी हम लोग I बताते थे, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट को भी हम लोग I बताएंगे। उसका डायमेंशनल फार्मूला होता है A⁻1। कोई बोलेगा मुझे ऐसे लिखना है m⁻0 m⁻0 t⁻0 k⁻0 A⁻1, तभी भी कोई दिक्कत नहीं है। या तो आप इसको ऐसे लिख दो, डायमेंशनल फार्मूला फॉर द करंट इज इक्वल टू A⁻1 सिंपली है ना। तो ये वाला करंट हो गया। तो इलेक्ट्रिक करंट विल हैव डायमेंशनल फार्मूला ऑफ A⁻1 है ना। फिर उसके बाद जो है अगर आप इलेक्ट्रिक चार्ज, द सेकंड फिजिकल क्वांटिटी व्हिच वी आर गोइंग टू लर्न इज इलेक्ट्रिकल चार्ज है ना। तो इलेक्ट्रिकल चार्ज इसका हम लोग कैसे लिखेंगे, दैट इज वी नो द फार्मूला I इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। दैट इज what is the current is defined as total amount of the charge passing through the given cross sectional area per unit time। तो हम लोग चार्ज को हम लोग Q is equal to I into T, क्या हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे है ना। तो द इलेक्ट्रिक चार्ज जो है उसका हमारे पास डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशनल फार्मूला इंटू टाइम का डायमेंशनल फार्मूला। सो इलेक्ट्रिक चार्ज है ना, ये वाला हो गया हमारे पास, इसका डायमेंशनल फार्मूला हो गया A और इसका हो गया हमारे पास T। सो द चार्ज विल हैव द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ A इंटू T। ये वाला इलेक्ट्रिक चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला हमारे पास हो गया। तो पोज करके इसको नोट बनाइए, पोज कर लीजिए, नोट बनाइए। पोटेंशियल डिफरेंस, द नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी, इट इज नथिंग बट इट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। सो पोटेंशियल डिफरेंस आपने जैसा सुना होगा 20 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, आपके घर में 230 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। तो दैट इज डिफाइंड हियर एज वर्क पर यूनिट चार्ज है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस विल हैव द डायमेंशनल फार्मूला, ये कैपिटल V है, तो कैपिटल V विल हैव वर्क का डायमेंशनल फार्मूला m1 L2 T⁻²।
और चार्ज का अभी हम लोगों ने देखा A into T. So potential difference will have the dimensional formula m1 L2 t raised to minus 3 a raised to minus 1. ये आपको याद रखना है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? m1 L2 t raised to minus 3 a raised to minus 1. ये पोटेंशियल डिफरेंस का आपके पास डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। अब पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला के बाद जो है हम लोग रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला भी देखेंगे। तो रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला हमारे पास क्या हो गया? तो रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़ने से पहले आप उसका रेजिस्टेंस उसको हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय करंट, है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय करंट, तो पोटेंशियल डिफरेंस का हमारे पास क्या डायमेंशनल फॉर्मूला था? तो पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशन देखिए, आर का डायमेंशनल फॉर्मूला, पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल बी और यहाँ पर आई। सो रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला आपके पास था m1, आपके पास था L2 t raised to minus 3 a raised to minus 1, और यहाँ पर I का जो है अगर आप देखोगे तो करंट विल हैव द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ A, तो रेजिस्टेंस विल हैव द डायमेंशनल फॉर्मूला m1 L2 t raised to minus 3 a raised to minus 2, है ना। तो ये वाला आपके पास रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। देखिए क्या कर दिया हमने, पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला m1 L2 t raised to minus 3 a raised to minus 1, और यहाँ पर रेजिस्टेंस का जो है ये करंट का जो है डायमेंशनल फॉर्मूला हमारे पास A, तो रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला हमारे पास ये हो गया। फिर उसके बाद जो है हमारे पास कैपेसिटेंस आता है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। कैपेसिटेंस जैसे आपके घर में फैन होता है उसके अंदर कैपेसिटर होता है ना, तो कैपेसिटर का जो है हम लोग कैपेसिटेंस मेजर करते हैं। सो कैपेसिटेंस इज नथिंग बट इट इज अ चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। तो कैपेसिटेंस इज डिफाइंड एज वी कैन से सी, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया हमारे पास A ही। इसका जो है पोटेंशियल डिफरेंस का भी हम लोगों ने पढ़ा था m1 L2 t raised to minus 3 a raised to minus 1, है ना। तो कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया हमारे पास m raised to minus 1 L raised to minus 2 t raised to minus 2 नहीं plus 2, देख सॉरी ये 1 और प्लस 3 मतलब t raised to 4 हो गया, और ये a raised to हमारे पास 2। सो कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला हमारे पास हो गया m raised to minus 1 L raised to minus 2 t raised to हमारे पास ये 3 और 1 ये 4 हो गया, a raised to we can say 2, ये वाला हमारे पास कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। एंड द लास्ट वन इज लास्ट फिजिकल क्वांटिटी व्हिच यू आर गोइंग टू लर्न इज रेडियो एक्टिविटी। सो रेडियो एक्टिविटी ये हो गया डिसइंटीग्रेशन, क्या पढ़ोगे? डिसइंटीग्रेशन पर यूनिट टाइम। सो डिसइंटीग्रेशन तो हम लोग नंबर में मेजर करते हैं, जैसे 100 डिसइंटीग्रेशन हो गए 2000, तो ये इट इज नथिंग बट इट इज वन टाइप ऑफ नंबर। तो ये नंबर जैसे 1000 डिसइंटीग्रेशन हो गए, 10,000 डिसइंटीग्रेशन हो गए, 50 डिसइंटीग्रेशन हो गए। तो रेडियो एक्टिविटी जो है उसको भी हम लोग मेजर करेंगे एक्टिविटी आई के तौर पे, ये भी आई ये भी इसका फॉर्मूला भी हमारे पास आई है। डिसइंटीग्रेशन इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा क्योंकि ये तो वन टाइप ऑफ नंबर है एंड टाइम विल हैव द डायमेंशनल फॉर्मूला एज टी। सो इसका हमारे पास हो जाएगा, तो रेडियो एक्टिविटी विल हैव द डायमेंशनल फॉर्मूला m0 L0 t raised to minus 1, क्या हो गया बेटा? m0 L0 t raised to minus 1, है ना। तो ये वाला हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं, आप पढ़ते रहिए। थैंक यू, बाय।